हेलो। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन एंड हाउ वी कैलकुलेट द फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन का मतलब है जब हम किसी भी चीज को इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर देते हैं तो वो पार्ट्स उसके फ्रैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव ए केक, राइट, एंड वी डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, सो दीज पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ ए होल, राइट। दिस इज 1/2, this is 1/2, so it is a fraction of this whole, right? If we divide this cake into four equal parts, right, four equal part, then you can see this part, this is 1/4. So this is 1/4 of this circle. This is 1/4 of this circle, this one, right? This part is 1/4 of this circle, and this is another 1/4 of this circle. If we shade these two 1/4 of circle, it will become, here we have shaded two parts of this circle, so this has become 2/4. Again, if we simplified it, it will become 1/2, right? So fraction is a part of a whole. So here we have divided this circle into 6 equal parts. So every part is, this is 1/6 of this circle, right? How many parts we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 6 parts. So this part is called 1/6, right? If we shaded two part of it, then it will become 2/6. But here we have shaded three part of this circle, so this is become 3/6, right? So again it is 1/2, right? Right? So in another example, we have divided a circle into 8 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? So this part is 1/8. Right? So fraction means part of a whole. Right? So if we are saying 1/8, it means the whole has 8 equal parts and it is a one of it, right? 2/8, it means the whole thing has 8 equal parts and this is twice of this, right? 2/8 means 2 of that 8 part, right? For example, if you have a square, like, for example, if you have a square and it is divided like this, right? So again, this is 1/2. If we divide it further, it will become, this part is become 1/4, right? We divide it further into equal parts like this. So here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parts, right? So if someone is taking these two parts, so this will become 2/8, right? If we shade 3 of it and we say what is the fraction of shaded part, then this is 3/8. The whole comes into denominator and the parts come into numerator. The upper part of a fraction is called numerator and the lower part is called denominator, right? So this is numerator, this is denominator. In 1/2, here we can see this is numerator, this is denominator, right? So now we can move further for the type of fraction. What is proper fraction and what is improper fraction, right? So here we have seen, हमने पिछले अपने photographs में देखा 1/2, 1/4, right? 3/8. So in सभी cases में आपका जो denominator है, it is larger than numerator, right? So denominator is more than numerator. These are called proper fractions, right? These are called proper fraction. बट आपने देखा होगा कहीं पर ऐसे लिखा होता है 7/4. सो जहां न्यूमरेटर आपका लार्जर होता है डेनोमिनेटर से, दे आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? सो एक बार फिर से हम समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन जिसके अंदर डेनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, राइट? और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें डेनोमिनेटर छोटा होता है आपके न्यूमरेटर से, राइट? So
इसको जब हम इस तरह से लिखते हैं 1:3/4, आपने देखा होगा, तो नाउ इट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। सो 7 1 the 4 1 the 4 and 3 is the remainder. So we write this 1 here and the remainder here. So this is mixed fraction of this improper fraction, right? So how to solve mixed fraction? Let us move further. 25/6, right? First of all, let us see how to create a mixed fraction. Simple, just divide this 25 by 6. 6 for the 24. We have 1 as a remainder. So how we will write it? हम इसको लिखेंगे 4:1/6, right? यहाँ हम लिखेंगे 4 और ये रिमाइंडर हमेशा ऊपर आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ टू मेक मिक्स फ्रैक्शन। ये जो मिक्स फ्रैक्शन हमने बनाया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, इसको फिर दोबारा से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? सिंपली मल्टीप्लाई दिस 6 into 4 24 plus 1, right? So we get 25/6. This is the same thing, right? So एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 47/7, right? So this is an improper fraction. Why it is improper fraction? Because the numerator is larger than denominator. So how to solve this? हम इसको solve करेंगे। चलिए आप भी मेरे साथ कीजिए। 47 divided by 7, तो 7 के टेबल में 7 6 are 42. What is the remainder? Remainder is here 5. So इसको हम लिखेंगे 6:5/7. This is mixed fraction of this improper fraction. इसको दोबारा से हमें सॉल्व करना होगा। दोबारा से अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42 plus 5, right? 7 multiplied by 6 42 plus 5. Multiply this and then add this. 7 multiplied by 6 42 plus 5. You get 47/7. It is very simple. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज राइट डाउन व्हाट एल्स यू वांट टू नो अबाउट द फ्रैक्शंस। लेट्स मूव फर्दर फॉर अनदर एग्जांपल्स। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि 1/4। इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होंगे? लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सो 2:1 2, 2:4 is 8. So 2/8 is equivalent to the 1/4. 1/4 multiplied by 3/3. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? और फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अपर पार्ट को अपर पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, लोअर पार्ट को लोअर पार्ट से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो यहाँ हमें क्या मिलेगा? 3/12, राइट? सो दे ऑल आर इक्विवेलेंट टू 1/4। अब ये और समझने की कोशिश करेंगे इसको हम। 1/4 multiply by 4/4. What we get? We get 4 multiplied by 1, 4/16, right? So they all are equivalent to 1/4. इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, राइट? अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे 4/16। इसको आप पहले क्या करोगे? 2 से आप इसको सॉल्व करोगे, 2 to the 4, 2 8 the 16, और सिंप्लीफाई होगा 2 1 the 2, 2 4 the 8. So 1/4, right? They all are equivalent. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस करने के लिए आपको क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 6/7। इसका आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने हैं। कैसे करेंगे? वही आपको बताया है हमने कि सेम नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 into 2 12, 7 into 2 14, राइट? सो 12/14 इज इक्विवेलेंट टू 6/7। आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे भी आते हैं 4/5। यहाँ पे ऐसे डैश बनाया हुआ होता है और यहाँ पे लिखा होता है 25। सो बहुत सिंपल है।
अगर 25 हमें डिनोमिनेटर में चाहिए और इक्वलेंट इसका चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25। तो यहाँ 4 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, व्हाट वी विल गेट 20, राइट। सो हमें वो फैक्टर देखना है, 25 5 से हम डिवाइड करेंगे, हम वी गेट 5। सो सेम नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर, राइट। सो 20 अपॉन 25 इज इक्वलेंट टू 4/5। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर हम। उम्मीद करती हूँ कि आपको फ्रैक्शन समझ में आ रहे होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो अब और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अब हमारे पास है 8 अपॉन 9, राइट। हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानना है, जिसमें हमें यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है और यहाँ 27। सो सिंपली डिवाइड 27 बाय 9, वी गेट व्हाट 3, राइट। सो उसी नंबर से आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, दिस इज 24 अपॉन 27। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 द 24 एंड 3 9 द 27, राइट। सो यू कैन सी इट इज इक्विवेलेंट टू दिस। सो एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर हम, 16 अपॉन 25, राइट। ये हमें क्वेश्चन है और इसका इक्विवेलेंट हमें बताना है, राइट। और यहाँ पर हमें डैश दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास 32 है। सो व्हाट शुड कम हेयर। सो सिंपली वही जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, इस 32 को आप डिवाइड करेंगे 16 से, तो व्हाट यू गेट, वी नो 16 टू द 32। सो सेम जो नंबर आपके पास आया है, ठीक है, उस नंबर से 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आंसर इज 50, राइट, राइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक और स्टेप और आगे। चलिए कभी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, हाउ टू कंपेयर द फ्रैक्शन, राइट। सो बहुत इजी ट्रिक है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि कैसे हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अब हमारे पास फ्रैक्शंस हैं 2/3 एंड यहाँ पर हमारे पास है 1/4, विच वन इज ग्रेटर। ऐसे क्वेश्चन सब जब हमारे पास आते हैं तो इसकी बहुत इजी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। सिंपली आप क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, राइट। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 8, 3 multiplied by 1 we get 3. So which number is greater? We know this 8 is greater. So जिस तरफ का नंबर बड़ा है वही फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। It means 2/3 is greater than 1/4. इसका एक और तरीका भी है, जो नॉर्मल आपका जो तरीका है इसको ऐसे भी कर सकते थे हम, 2/3 and 1/4। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, राइट। सो एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम इज 12, वी नो। इसका हम एलसीएम लेंगे 12, राइट। सो वी नो 3 4 the 12, so 4 multiplied by 2 is 8 and 4 3 the 12, 3 multiplied by 1 is 1. So same way we can do, either way आपको जो इजी लगता है तरीका उस तरीके से आप कर सकते हैं कि एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, उसमें जो नंबर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, या फिर सिंपली आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टू चेक विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। चलिए एक और नंबर लिखते हैं हम, जैसे कि हमने लिखा 4/5 एंड 6/3, right. So same way you can cross multiply these two, right. 4 multiply by 3 and 6 multiply by 5. So here we get 12 and here we get 30. So 30 is larger than 12. So this जिस साइड का नंबर बड़ा है उसी साइड का आपका फ्रैक्शन बड़ा होगा. So this one is greater than 6/3 is greater than 4/5. I hope you are getting how to solve the fractions questions, right? If you have any query, you can write down in our comment section. आप हमारे comment section में लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन के और कौन से क्वेश्चन हैं जो आप चाहते हैं कि हम आपको समझाएं या सॉल्व करें. प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल. चलिए और कुछ न्यूमेरिकल्स पर हम और आगे बढ़ते हैं. We have 1/4 meter of a rope and we purchase 1/6 meter of rope for some another work. What is the total rope we have, right?
जहां पर भी ये टोटल वर्ड हमारे पास आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमें सम करना है, राइट? वी हैव टू सम अप। सो इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं, जब आपको फ्रैक्शंस को सम करना है तो कैसे करेंगे? चलिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं उनका हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। सो आई होप आपको आता होगा कि एलसीएम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यस, चलिए मेरे साथ कीजिए। 2 3 the 6, 2 to the 4, right? So here we have 3 1 the 3 and this 2 and this is 2 1 1, right? So we can write that LCM is 2 is to 3 is to 2, that is 2 is to 3 6 into 2 12, right? So 12 is the LCM. So LCM यहाँ 12 है, उसको हम डेनोमिनेटर में लेंगे। We divide this denominator, हम 4 से डिवाइड करेंगे 12 को। What we get? We get 3. We multiply 3 with this numerator. This is 3 plus. Again we divide this 12 with the 6, we get 2 and multiply this with the 1. So sum up these two, we get 5 by 12. So this is our answer. So now we have 5 by 12 meter of rope, right? So you have any doubt, you can write down in our comment section. So please watch our full video. We are proceeding to another part of fraction. 5 by 7 oranges are given to Ram, right? Calculate the part of oranges left, right? So whole, अगर आप हमें पता है कि 1 is a whole part, right? और you can say 7 by 7 is a whole part. तो 7 by 7 क्या होता है? वो 1 ही होता है. So 1 is a whole. It means out of 1, 5 by 7 is given to Ram. 5/7 जो है वो राम को ऑरेंजेस दे दिए गए हैं. तो what are the left? जब हमें उसमें से कितने बच गए निकालना है तो हमें क्या करना होगा? हमें सिंपली उसका सब्ट्रैक्शन करना होगा, राइट? सो 1 by 1 इसको हम ऐसे लिखेंगे. तो अगेन हम एलसीएम लेंगे 1 और 7 का. वी नो द एलसीएम इज 7, राइट? So 7 divided by 1, we get 7. 7 multiplied by 1, here we get 7, right? 7 divided by 7, we get 1, right? So 1 multiplied by this 5, we get 5. 7 minus 5, 2 by 7. So 2 by 7 oranges are left, right? After 5 by 7 are given to the Ram. So I think that your concepts are getting clear about the fraction. Fractions क्या होते हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम ग्रेटर और स्मॉलेस्ट निकालते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आज हमने सीखा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने फ्रैक्शंस का सीखा. चलिए एक और हम यहाँ पर एक और पार्ट लेते हैं इसमें. चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 hours? ऐसा क्वेश्चन हम देखते हैं ना, एग्जाम में आता है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 hours? सो हमें पता है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं. वी नो 24 hours, राइट? हमें पता है 24 hours होते हैं. तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 8 hours ऑफ ए डे निकालने के लिए क्या करेंगे? 8 डिवाइडेड बाय 24. सो दिस इज 8 1 द 8, 8 3 द 24. आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट? 1 by 3, राइट? एक और क्वेश्चन करते हैं. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 minutes? अब एक आपके पास क्वेश्चन है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 minutes? वी नो 40 minutes. एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 minutes. तो इसका फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 40 डिवाइडेड बाय 60. अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 से करेंगे 10 4 6, अगेन 2 से करेंगे 2 by 3. सो दिस आंसर इज 2 by 3. आई होप आपको फ्रैक्शन के बारे में काफी नॉलेज मिली हो. तो अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक मैथ का लेंगे. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड एंजॉय स्टडी. माय मिशन इज टू मेक मैथ इंटरेस्टिंग, राइट? सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. धन्यवाद. कीप लर्निंग, कीप राइजिंग.